Hi friends, welcome to my YouTube channel Rishabh Study Group. Friends, before discussing those topics, I would like to say you something that in this video I have tried my best to satisfy the English medium students as well as the Hindi medium students. And friends, if you will be continuously supporting me like this, so it's my promise to you that I will cover several topics of IIT Foundation book in my later on videos, and from which you may get help in your future. Now friends, without wasting any time, let's come on our topics. So today's topic is class 9th NCERT science book, chapter 8, motion. So friends, as you know, motion is the part of the physics and physics is a branch of science. So before understanding this physics and motion and all that, let's understand the basic concepts of science, that what is the requirement of science and what is the need of science. So friends, anything which happens in our environment is just based on several principles or rules. कोई भी चीज़ इस एनवायरनमेंट में हो रही है वो किसी भी रूल पे और प्रिंसिपल पे पहले से ही फिक्स है, बट द डिफरेंस इज दैट द कवर इज ऑन दैट रूल्स. उस रूल्स पे एक कवर है एंड वी आर हेयर टू अनकवर दीज थिंग्स. इफ द एक्ट ऑफ अनकवरिंग समथिंग इज नॉन एज द डिस्कवरी ऑफ समथिंग. किसी भी चीज़ से पर्दा हटा देना, उसकी खोज करना होता है, दैट वी हैव डिस्कवर्ड दैट थिंग. नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट हाउ कैन वी डिस्कवर समथिंग. So friends, the answer is observation. Through observation. Now, what is observation? Act of monitoring some object closely is known as observation. You can understand it by an example, which is the gravity is discovered by the Newton. Newton don't invent it, he discovered it. Means gravity पहले से ही थी, लेकिन उसको डिस्कवर किया न्यूटन ने. एक एप्पल उन पे फॉल डाउन हुआ तो उन्होंने सीधा ये नहीं कह दिया कि एप्पल नीचे गिर गया है तो इसका मतलब ये ग्रेविटी है. ही जस्ट ऑब्जर्व दैट सिचुएशन, ही ऑब्जर्व दैट टाइम एंड ही थॉट दैट व्हाई डिडंट द एप्पल कम डाउन ओनली, व्हाई डिडंट इट गो अप और इन एनी डायरेक्शन इट कैन गो, सो व्हाई डिडंट इट फॉल डाउन ओनली, सो इट मीन्स समथिंग पुलिंग इट. सो दैट टाइम, दैट वाज द मोमेंट देन ही डिस्कवर्ड द ग्रेविटी. So friends, from this you can understand the discovery. So now if we have discovered something, now we have to create some new things which has been never made before, जो आज से पहले कभी ना बना हो. और उस चीज़ का जो क्रिएशन होगा वो हमारे डे टू डे लाइफ्स में एक सपोर्ट देगा. It will support our day to day lives or it will also support or improve our discoveries. तो the creation of new things is known as invention. किसी भी चीज़ की, कोई भी नई चीज़ का बनाना जिससे हमें एक सपोर्ट मिले, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को एक सपोर्ट दे, वो जो क्रिएशन होगा वो इन्वेंशन कहलाता है. सो वी कैन से दैट डिस्कवरी एंड इन्वेंशन आर द टू मेन पिलर्स ऑफ साइंस एंड यू कैन ऑल्सो से इट एज द बैकबोन ऑफ द साइंस. ये साइंस का बैकबोन भी है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस विथ अ डेफिनेशन. So science is the intellectual and practical activity encompassing the systematic study of behavior, structure of physics and natural world through your observation and experiment. किसी भी चीज़ को अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन से हम उसको प्रूव करें, उसको डिस्कवर करें या इन्वेंट करें, उसके स्ट्रक्चर को, उसके बिहेवियर्स को, तो ये साइंस है. इन स्टडीज़ को हम साइंस कहते हैं. इन हिंदी, अगर आप हिंदी में इसको समझना चाहें तो इसका डेफिनेशन होगा कि विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम तथ्य, सिद्धांतों, तरीकों को प्रयोग तथा परिकल्पनाओं से स्थापित करते हैं, जिसे हम विज्ञान कहते हैं. तो दैट इज द साइंस. नाउ एज यू नो, साइंस इज द वास्ट सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. जिस वजह से ये इसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, जिससे कोई भी इस हर पार्ट को अच्छे से समझ ले. So the parts are physics, chemistry and biology. So today's topic is motion, which is the part of physics. So today let's cover up the physics only. Physics is the natural branch of science in which we study the matter, its motion and its behavior, structure through space and time. And it includes several entities of different types of energy and forces. And actually physics is one of the most fundamental scientific discipline. And the main purpose of physics is to understand the universe and how it behaves with us. कि जो मेन पर्पस है ना फिजिक्स का, वो यूनिवर्स के लॉज को, यूनिवर्स के जो भी रूल्स हैं उनको समझना है.
कि कैसे कोई मूवमेंट हो रहा है, कैसे कोई एनर्जी रिएक्ट कर रहा है, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी कैसे हम पे रिएक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन अ कटिंग ऑफ ट्रीज कैन अफेक्ट ऑन अस. सो कैसे हम पेड़ काटते हैं और कैसे वो हम पे अफेक्ट करता है. हाउ कैन इट अफेक्ट इन आवर डे टू डे लाइव्स. नाउ if you have, I hope you have understand the physics. So let's understand the motion, today's topic. So friends, motion is nothing, the movement of in any substance, and we can, if we can calculate the movement of any substance through the distance upon time. अगर हम बता पा रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कैसे मूव कर रहा है, उसका जो हम बता सकते हैं कि जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितने टाइम में कवर कर रहा है, तो उसे हम मोशन कह देते हैं कि an object consists motion. Now you can see in your day-to-day lives various types of motions. For example, the bloods are flowing through our veins and arteries, the birds are flying, the fishes are swimming. So these shows some common examples of motion. This shows that the object is in motion, it is not in rest. So ये था मोशन. मोशन को हम काफ़ी सारे पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं. इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग. मीन्स there are many types of motion. For example, rectilinear motion, linear path motion, circular motion. So in this chapter we shall learn the all probabilities of motion. हम motion के हर situation, हर probability को अच्छे से समझेंगे. Before it, I would like to give you an example that how a motion is a complex. So अगर कोई passenger बस में बैठा है, so he will see his outside environment and his outside trees and man who are seen to move backward. वो ऐसा दिखेंगे कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जबकि वो पैसेंजर बस में बैठा है और बस आगे की तरफ मूव कर रही है, जिसके वजह से जो ट्रीज है, वो रोड्स, वो उसको लगेगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है. हम नहीं कर रहे हैं, वी आर इन रेस्ट. बट द अपोजिट थिंग्स हेल्प्स टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट. जो बाहर के लोग होंगे वो अगर रेस्ट में होंगे तो वो देखेंगे कि बस मूव कर रहा है पैसेंजर्स के साथ, दैट बस इज मूविंग अलॉन्ग विद द पैसेंजर्स. सो हियर द one thing also happened, that passengers who are sitting in the bus will also see their fellow passengers that they are in rest. जो passengers उनके साथ बैठे होंगे वो उनको देख के बोलेंगे कि ये तो हमारे साथ ही बैठे हैं और ये भी रेस्ट में है, जबकि वो मोशन में है. वो एक डेफिनाइट डेस्टिनेशन कवर कर रहे हैं, एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम. दैट इज नॉन एज मोशन. यहाँ आई होप you have understand the motion. Now our next topic is how can we describe a motion. How can we say that an object covers a distance. हम कैसे बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव किया है. सो जब हमें उसका इनिशियल पोजीशन पता हो. इफ वी नो द इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट फ्रॉम हेयर ही कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, मीन्स यहाँ से इस जगह से वो मूव किया है. ही चेंज इट्स डेस्टिनेशन. द चेंज इन डेस्टिनेशन शोज द मूवमेंट इन ऑब्जेक्ट. किसी भी चीज को हम कैसे बोलते हैं कि ये मूव कर रहा है, हम इसको ऐसे बोलते हैं कि उसने एक प्लेस चेंज किया है, उसका जो पोजीशन है वो चेंज हुआ है. तो कहाँ से हुआ है? द क्वेश्चन अराइजेस दैट फ्रॉम वेयर एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स एंड फ्रॉम वेयर इट चेंज इट्स मोशन. सो हियर द आंसर ऑफ वेयर इज द इनिशियल पोजीशन. Initial position is the place from which an object starts its movement and from which it classified that it has moved its place. वो अपनी जगह से हिला है. कहाँ से? तो इनिशियल पोजीशन उसकी जगह है जहाँ से वो मूव किया है, तो दैट इज नॉन एज इनिशियल पोजीशन. लेट्स अंडरस्टैंड द इनिशियल पोजीशन फ्रॉम एन एग्जाम्पल. अगर कोई विलेज है, उसमें एक घर है और वहाँ एक आदमी रह रहा है और उसको ग्रोसरीज आइटम्स चाहिए. सो द ग्रोसरी शॉप इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज होम इन द नॉर्थ डायरेक्शन. नॉर्थ डायरेक्शन में उस ग्रोसरी शॉप लोकेट करता है, एंड द मैन स्टार्ट्स हिज जर्नी एंड रीच टू द शॉप. देन ही बॉट द ग्रोसरी आइटम्स. सो हियर द मैन इज लाइक अ ऑब्जेक्ट एंड ही चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन विच इज हिज होम. उसका घर ही उसका इनिशियल पोजीशन था जहां से उसने अपना पोजीशन चेंज किया और वो पहुंचा ग्रोसरी शॉप में आइटम्स लेने के लिए. तो यहाँ जो ग्रोसरीज आइटम्स उसने परचेज करने के लिए वो इतना जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, कहाँ से किया? तो इनिशियल पोजीशन के बेस पे. तो दिस फ्रॉम दिस वी कैन सिंपली डिस्क्राइब एनी मोशन. सो बाय गिविंग एन इनिशियल पोजीशन वी कैन सिंपली डिस्क्राइब एनी मोशन. नाउ फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मोशन ऑन ए लीनियर पाथ ऑन अ स्ट्रेट लाइन. कि स्ट्रेट लाइन पे हम कैसे किसी मोशन को देखते हैं.
So in a straight line we find several two physical quantities. Number one is vector quantity and the second one is the scalar quantity. ये दो quantity हो गए. अब friends, what is scalar and vector? Actually friends, the scalar needs the scalar don't needs a specific direction to identify it, but if we talk towards the vector, so it needs some definite direction to identify it. किसी भी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको एक डिफिनाइट डायरेक्शन चाहिए कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में गया है या साउथ डायरेक्शन में. तो ऐसी चीज़ों में हमें हम इसको एल्जेब्रिक मेथड्स और सिंपल मैथमेटिक रूल्स इसमें अप्लाई नहीं होते हैं. सो ये जो रूल्स हैं ये वेक्टर क्वांटिटी के अंडर आते हैं, जबकि स्केलर क्वांटिटी को बिना किसी डायरेक्शन के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Now friends, for example, just imagine a straight line which has some measurement on it. It starts from 0 and ends to 80 km in the difference of 2020. So 2020 के गैप में एक लीनियर पाथ है, वो 0 से स्टार्ट हुआ और 80 किलोमीटर पे एंड हुआ. सो यहाँ पे जो imagine that an object starts from 0 and goes up to 80 kilometer. He ends its motion. So यहाँ पे अगर हम बात करें किसी ऑब्जेक्ट की, तो अगर हम पूछे कि यहाँ उसका डिस्टेंस क्या है, एंड फ्रेंड्स डिस्टेंस कम्स इनटू द स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी जिसमें हमें किसी भी डायरेक्शन की नीड नहीं होती है. हम इसको सिंपल मैथमेटिक रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ जो उसका टोटल डिस्टेंस हो गया है वो 80 किलोमीटर, कि जो इनिशियल पोजीशन था, जो ओरिजिन पॉइंट था वो था 0 और वहाँ से एक ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया और 80 किलोमीटर तक पहुँचा. तो 80 किलोमीटर तक उसका टोटल डिस्टेंस हो गया कि 80 किलोमीटर उसने पूरा कवर अप कर लिया. नाउ इट मूव्स टुवर्ड्स इट्स ओरिजिन पॉइंट एंड कम बैकवर्ड. सो हाउ मच? सो 20 किलोमीटर. सो यहाँ पे 20 किलोमीटर और वो ट्रेवल किया. तो यहाँ पे वो जो 20 किलोमीटर है, वी विल प्लस दिस नंबर टू द लेटर मेजरमेंट. पहले जो हमारा मेजरमेंट आया था, जो टोटल डिस्टेंस था 80 किलोमीटर, अब उसका टोटल डिस्टेंस और 20 किलोमीटर बढ़ गया है कि 20 किलोमीटर उसने और ट्रेवल किया है. तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 100 किलोमीटर. सो द 100 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस. नाउ फ्रेंड्स, दिस इज द डिस्टेंस एंड रिमेंबर वन थिंग, देन द लेटर टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट may be equal to the distance also in several conditions. कुछ ऐसे conditions होंगे जिसमें displacement जो होगा वो distance के बराबर हो जाएगा. Now let's understand the displacement. Actually, the shortest path between the initial position and the final position is known as displacement. It is a vector quantity because it needs some direction in it. Friends, actually जो भी initial position होगा, जैसे 0 है, और जो उसका फाइनल पोजीशन होगा, हम उसको ये नहीं देखेंगे कि उसने फाइनल पोजीशन जो उसका है वो कहाँ से घूम कर उसने तय किया है. अगर ओरिजिन पॉइंट ये है तो उसका जो फाइनल पोजीशन, अगर वो चाहे ऐसे आगे आके लेफ्ट टर्न लेके राइट टर्न लेके अगर वो कैसे भी इस पोजीशन पे पहुंच गया, तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस होगा वो हम ऐसे कवर करेंगे, हम सारे मेजरमेंट को प्लस करेंगे. लेकिन यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा जो इनिशियल ओरिजिन पॉइंट था उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फाइनल पोजीशन से, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. मीन्स यहाँ से यहाँ तक ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा कि उसने अपना जगह छोड़कर और वहाँ उसका फाइनल प्लेस हो जाएगा. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल. सो इमेजिन दैट ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम 0 and ends in 80 किलोमीटर. So here the displacement is 80 किलोमीटर, क्योंकि 0 पोजीशन से वो 80 किलोमीटर तक ट्रेवल किया है. तो मैंने कहा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है जिसमें ये दोनों बराबर हो जाए. जैसा कि मैंने पहला जो एग्जांपल दिया था आपको, उसमें था कि ये ऑब्जेक्ट 0 से 80 तक गया तो उसको भी हमने डिस्टेंस कह दिया, और अब मैं इसी चीज़ को डिस्प्लेसमेंट भी कह रहा हूँ. तो हाँ, क्योंकि ये उस रूल को फॉलो कर रहा है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो भी मेजरमेंट है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, तो इसको हमने डिस्प्लेसमेंट कह दिया. इसमें उसने बाकी कोई टर्न्स नहीं लिए, एक स्ट्रेट पाथ है ये, ठीक है. तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो गया 80 किलोमीटर. नाउ फ्रेंड्स, 80 किलोमीटर से वापस वो ओरिजिन पॉइंट की तरह, सिमिलरली इन दोज केस, देन ही मूव्स टुवर्ड्स द ओरिजिन पॉइंट. हाउ मच? सो 20 किलोमीटर. 20 किलोमीटर वो वापस आ गया. सो यहाँ जो अब उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, सो अगर आप कहते हैं 100, सो इट्स रॉन्ग, क्योंकि यहाँ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो और कम हो गया ना. पहले 80 किलोमीटर दूर था, अब बस
20 किलोमीटर और पास आ गया तो 20 किलोमीटर वी विल माइनस दैट नंबर, सो वी विल गेट 60 किलोमीटर. 60 किलोमीटर अब इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. 60 kilometer will be the displacement. I hope friends you have understand the difference between displacement and distance. Now friends, our next topic is uniform motion and non-uniform motion. ये जो uniform motion है ये मतलब समान गति. If an object travels the same distance in a same interval of time is known as uniform motion, and if an object don't cover the same distance in a same interval of time is known as non-uniform motion. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है 5 सेकंड में, अगेन 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है 5 सेकंड में, सो यहाँ जो उसका जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो भी 5 सेकंड है, और जो डिस्टेंस कवर वो कर रहा है वो हर 5 सेकंड में 5 मीटर ही कवर कर रहा है. तो दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन. बट इफ वी से दैट an object starts from 0 and covers 10 kilometer in 5 seconds, then again 11 kilometer in 6 seconds. So यहाँ टाइम और जो डिस्टेंस है वो मैच नहीं हो पा रहा है, मतलब एक पैटर्न नहीं मिल रहा है हमें. सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ फ्रेंड्स, जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उसमें हमें बोर्ड की जरूरत है. दैट्स व्हाई वी विल कवर दोज टॉपिक्स इन आवर लेटर ऑन वीडियोज. So friends, if you have any queries, if you have any doubts in this video, please comment me in my comment section so that I will try to give you a better answer as soon as possible. And friends, if you like this video, please subscribe it and also press the bell icon so that you will get the notification of my recent video. So friends, thank you for watching my videos.